ہم ممتاز فکشن رائٹر جناب محمد حمید شاہد صاحب کے بہت شکر گزار ہیں. آپ کی یہ تصنیف محمد پیکر جمیل آپ کے سامنے ہے. اس کتاب کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور ابھی یہ جو تازہ ایڈیشن ہے یہ بک تاج الجہلم سے شائع ہوا ہے. اس کتاب کے بارے میں دو اکابرین کے تاثرات میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. افتخار عارف صاحب کا تاثر ابتدا میں پیش کرتا ہوں کہ صاحب نصیب ہیں محمد حمید شاہد کہ اللہ کریم نے انہیں توفیق عطا فرمائی کہ وہ سرور دو عالم نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو قلم بند کرنے کا شرف اور سعادت حاصل کریں. اردو اسلامی دنیا کی زبانوں میں سب سے کم عمر زبان ہے، مگر اس کا اعزاز ہے کہ قرآن مجید کے تراجم و تفسیر اور سیرت طیبہ پر جتنا اور جیسا معیاری کام ہوا ہے اور ہو رہا ہے وہ کسی دوسری زبان سے کم نہیں. پیکر جمیل محمد حمید شاہد کی پہلی کتاب ہے، مگر اپنے معیار، نگارش اور مواد کے اعتبار سے کتب سیرت میں ایک لائق اعتبار و استناد حوالے کی حیثیت رکھتی ہے. سادہ رواں انداز بیان اور اخلاص کے پیرائے میں ڈوبا ہوا اسلوب قاری کو اپنی جانب منہمک اور متوجہ رکھتا ہے. خیر سے اس کتاب کی اشاعت کو کئی برس گزر چکے ہیں اور اب جبکہ وہ یعنی محمد حمید شاہد صاحب افسانوں اور تنقیدی کتابوں کے مصنف کے طور پر ساری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں اور حال ہی میں ان کی خدمات کے اعتراف میں ان کو یوم پاکستان کے موقع پر قومی اعزاز سے بھی نوازا گیا ہے. پیکر جمیل کا نیا ایڈیشن شائع ہو رہا ہے. یقین کیا جانا چاہیے کہ ان کی یہ خدمت دنیا و آخرت میں ان کی سربلندی اور سرفرازی کی ضامن ہوگی. اسی طرح قابل احترام پروفیسر فتح محمد ملک صاحب کا جو تاثر ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل اس حوالے سے ہے کہ وہ یعنی اس تصنیف سے، اس کی قرأت سے آپ ان فضاؤں میں چلے جاتے ہیں. آپ ذرا یہ ملک صاحب کا تاثر توجہ فرمائیں. پیکر جمیل نامور ادیب محمد حمید شاہد کا اولین علمی و ادبی کارنامہ ہے. یہ کتاب محمد حمید شاہد کے فکر و فن کی تفہیم و تعبیر میں کلیدی اہمیت کی حامل ہے. یہ علمی اور تحقیقی دستاویز اس کے تخلیقی مزاج میں روحانی سوز و ساز کی کارفرمائی کی شاہد عادل ہے. یہ علمی دستاویز ہمیں محمد حمید شاہد کے سرچشمہ فیضان تک رسائی بخشتی ہے. پیکر جمیل بیک وقت مختصر بھی ہے اور مفصل بھی. اسے پڑھتے ہوئے قاری یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ زمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا پہنچا ہو، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی گلیوں شاہراہوں میں گھوم پھر رہا ہو، جاہلیت کی تہ در تہ تاریکیوں سے اسلام کی نور علی نور فضاؤں میں آ نکلا ہو اور بذات خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشد و ہدایت کی باتیں سن رہا ہو. یہیں گھومتے پھرتے اور یہیں مبارک کلمات سنتے سنتے محمد حمید شاہد نے اردو ادب کی قلمروں میں قدم رکھا تھا. اسی احساس میں سرشار ہو کر مجھ پر کھلا ہے کہ یہ کتاب محمد حمید شاہد کے فکر و فن کی کلید ہے. تو آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب محمد حمید شاہد. الحمد یونیورسٹی کا بہت شکریہ. میں نے چند سطریں پڑھنا چاہتا ہوں. اس کا عنوان ہے فرد، نیا سماج اور سیرت رسول. آج سے لگ بھگ 40-45 سال پہلے جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کتاب مکمل کر چکا اور اس کا مقدمہ لکھنے سے پہلے کتاب کے نام کی بابت سوچ رہا تھا تو جیسے ایک چھپاکا سا ہوا تھا اور روشنی کی ایک لکیر دور تک میری رہنمائی کرتی چلی گئی تھی. میں نے قلم اٹھایا اور پیکر جمیل لکھ دیا. مجھے اس نام تک راغب اصفہانی کی مفردات میں موجود حسن کی اس تعریف نے پہنچایا تھا. حسن مسرت بخشتا ہے، یہ عقل، خواہش یا حسیات کو مرغوب ہوتا ہے. حسن کا نقیض سو ہے جو غم لاتا ہے، یہ غم دنیا کا ہو یا اخروی،
खा नफ्सियाती हो या जिस्मानी, या महज मारूज या खारिज से ताल्लुक रखता हो। आगे इस फानी के इन सतूर को पढ़ते ही मेरा ईमान और कुफ्र का, खूबी और खराबी का, नेकी और बदी का तस्वर बदल गया। अब ये सारे तस्वुरात जमालियात के तस्वर की ज़हन में हो गए थे। इस तस्वर की रोशनी में मेरे लिए आकायद और जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक और हदीस और सीरत पाक हुस्न का मंबा थे, और आपका कामिल वजूद पैकर जमील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत हसन बिन साबित ने फरमाया था, मेरी आंखों ने कभी आपसे ज्यादा हसी नहीं देखा, औरतों ने आपसे ज्यादा कोई जमील नहीं जाना। आपको हर ऐब से पाक पैदा किया गया है, जैसे आप अपनी मंशा के मुताबिक पैदा हुए। मैंने जब जब शायर रसूल हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इन अशआर को पढ़ा है, उनकी तफसीर में आपके शुमाइल से उस सकाफती तश्कील तक के मज़ाहिर अपनी जगह बनाते चले गए हैं जो इंसाफ और इंसानी तकरीम को बुनियाद करती है, मुआशरती बिगाड़ के रास्ते मजबूत करती है, और ज़िंदगी के हर शोबे में ज़मीनी खुदाओं की गुलामी से निजात दिलाकर इंसानी बातिन को बलूगत और मुसरत से हमकिनार करती है। अल्लामा इकबाल के नज़दीक इंसानी बातिन में बलूगत की जानिब सफ़र में बेशत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर तस्वर खत्म नबूवत बहुत बुनियादी किरदार अदा करते हैं। मैं समझता हूँ कि यहीं पहुँच कर न सिर्फ इंसानियत ने फ़िक्री, इल्मी और रूहानी इर्तिका की मंजिल कबूल की, इंसानी मुआशरत को हुस्न की मुस्तकिल बुनियादों पर मुनज़्ज़म करने और फ़र्द और इज्तिमा में इन्हीं असूलों पर जमालियात के नए पैटर्न तख्लीक किए चले जाने की सूरत भी सुझा दी है। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि आज के ज़माने में जनाब रिसालत मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम रस्मियात मज़हब के मामले में किस हद तक चौकस हैं, बल्कि इसके हकीकी माने जमालियाती सतह पर समाजी तश्कील है, तो यूं है कि मैंने समाज की इस जमालियाती तश्कील को 3 सतहों पर देखा है। पहली सूरत में समाज की तश्कील में फ़र्द का अपना किरदार बुनियादी हो जाता है। मैंने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताले से यह अखज़ किया है कि समाज की सकाफती तश्कील में फ़र्द का किरदार बुनियादी नोयत का है, इसलिए हदीस का एक बड़ा खजाना फ़र्द को ही मौजू बनाता है। मुझे बाज़ मकामात पर तो यूं महसूस होता है कि यहाँ किसी का मुसलमान होना या ना होना सानवी हो जाता है। मसलन मैं मौलाना वहीदुद्दीन खान की किताब तारीख़ इस्लाम पढ़ रहा था, और जहाँ अपने आला इंसानी औसाफ के सबब प्यारे इंसानियत हो जाने वाले असहाबे रसूल रिज़वानुल्लाह अजमईन का जिक्र हुआ है, वहीं आपकी एक ऐसी हदीस मुबारक पर नज़र पड़ी तो किसी फ़र्द के साहिब तौक़ीर होने और समाज के लिए कारामद होने का मेरा तस्वुर अक्सर बदल गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान है, कारकुम फिल जाहिलिया कारकुम फिल इस्लाम। गोया नस्बी तौर पर मुसलमान हो जाने से हम में से कोई अफजल नहीं हो जाएगा और न ही वो बेहतर समाज की तश्कील में मावन हो सकता है। इस हदीस मुबारक का मतलब है कि तुम्हारे जो अफराद जाहिलियत में बेहतर हैं वो इस्लाम में भी बेहतर है, यानी इखलाकी सतह पर। गोया हर फर्द के यही शख्सी और ज़ाती औसाफ बहुत अहम है। जनाब रिसालत मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला कीजिए तो ये फ़र्द यहाँ मरकज़ में नजर आएगा, समाज की बुनियादी इकाई की सूरत में, और तवातुर से उस फर्द पर अपने अंदर ऐसे औसाफ पैदा करने पर जोर दिया जा रहा होगा कि सुना मोमिन अपने अच्छे इखलाक की वजह से रोज़ा रखने वाले और रात भर इबादत करने वाले के दर्जा को हासिल कर लेता है। अच्छे इखलाक की तशरीह और शिनाख्त की बाबत कसीर हदीस मौजूद हैं, और इसका आला और कामिल नमूना आपकी अपनी ज़ात मुबारक है। आपको सादिक और अमीन कहने वाले वो भी थे जो आप पर ईमान नहीं लाए थे। याद कीजिए वो वाक़या जब काबतुल्लाह की इमारत की तामीर नौ में हजर अस्वद नस्ब करने का मामला दरपेश था। कुतुब सीरत में दर्ज है कि हर कबीला ये चाहता था कि ये फजीलत उसे मिले। झगड़ा खड़ा हो गया, तब बड़ी तलवारें निकल आई और लहू के भरे हुए कटोरे पर मरने मारने के ऐद बांधे जाने लगे। तो फैसला हुआ कि तनसीब हजर अस्वद का फैसला कल वो करेगा जो सबसे पहले मस्जिद हराम में दाखिल होगा। खुदा का करना ये हुआ कि अगले रोज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले वहां पहुंचे थे, और फिर जिसने भी आपको देखा पुकारा, हाज़ल अमीन ग़ज़ाइना हाज़ा मोहम्मद, या ये कहा कि अताकुम अमीन। यानी सीरत पाक हमारी रहनुमाई करती है कि जब तक आप एक बेहतर फर्द नहीं बनते, अमानतदार और सच्चे नहीं होते, आप एक बेहतरीन समाज को तश्कील देने के लायक भी नहीं होंगे।
यही एक और हदीस में मुलाहिजा कीजिए कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो अपने माल से तो गुलामों को खरीदता है और फिर उनको आज़ाद करता है, वो भलाई का मामला करके आज़ाद आदमी को क्यों नहीं खरीदता, जबकि इसका सवाब बहुत ज़्यादा है। यानी फर्द का फर्द से सलूक दिखलावे वाला नहीं, इखलास वाला होना चाहिए। अब मैं अपने दूसरे नुक्ते की तरफ आता हूँ, यानी सकाफती तश्कील और फर्द की आज़ादी की तरफ। जहाँ सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फर्द की बातनी ततहीर पर जोर दिया गया है, वहीं उसके अंदर तख्लीकी इम्कानात की बढ़ोतरी और नमू के लिए ऐसी सकाफती तश्कील के अंदर ऐसे रिश्तों में बनने पर जोर दिया गया है जिसमें बेजाग कदबने ना हो। सकाफती तश्कील में जहाँ फर्द मादर पिदर आज़ाद नहीं है, वहीं समाज को भी इसका पाबंद बनाया गया है कि वो फर्द के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। सूरह अल-हुजरात में फरमाया गया है, लोगों हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, फिर तुम्हें कौमें और कबीले बनाए ताकि एक दूसरे को शिनाख्त कर सको। अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा फजीलत वाला वो है जो ज़्यादा तकवा रखता है। गोया महज किसी कबीले या ख़ानदान से मुताल्लिक़ होना फजीलत की निशानी नहीं है। फ़र्द के शख्सी औसाफ की अहमियत किसी भी ख़ानदान या कबीले से मुताल्लिक़ होने के बाद भी बरकरार रहेगी। ताहम समाज में शिनाख्त का निशान बनने वाले दूसरे वसाइल की नफ़ी नहीं की गई है। यहाँ कौमों और कबीलों को अगर शिनाख्त के तौर पर मोहतरम करार दिया गया है, तो यकीन जानिए कि आज के ऐद में भी उनकी अहमियत है। इन शिनाख्तों की यकसर नफी समाजी इंतशार का सबब बनेगी। आज का एक अहम मसला ये भी है कि हमारे माबादियाती समाज में फ़र्द जितना खुदसर हो गया है और उस पर जितना भरोसा होने लगा है, उतना भरोसा ख़ानदान के हवाले से कायम नहीं रखा जा सका। हालांकि फ़र्द की तरबियत का जिम्मा महज रियासत नहीं ले सकती। माँ बाप, बहन भाई, शोहर बीवी, फ़र्द इन रिश्तों में बंद कर बहमी ताल्लुक़ की एक तहजीब कायम करता है। इस तहजीब की इमारत में नए ज़माने में जो दरारें पड़ी हैं, इन्होंने फ़र्द को भी हैवानी सतह पर लापटका है और समाज में भी 100 तरह के रखने पड़ने लगे हैं। इन रकनों को तरक्की याफ्ता हुकूमतें सख्त कवानीन और सरी ताज़ीरी इक़दामात से बड़ी हद तक बांट रही हैं, मगर जहाँ कहीं ये कवानीन मुअत्तल होते हैं या किसी ज़्यादती के हवाले से एहतजाज की नौबत आती है, तो अशिया से भरे हुए जदीद तर स्टोर भी यही महज़ब लोग लूट लिया करते हैं। फिर एक और सानिया ये हुआ है कि आज के समाज में फ़र्द अपनी ताल्लुक़दारों से इतना दूर हुआ है कि ख़ानदानी गैरत और अहमियत जैसे अल्फाज ही से उकताहट हमारे मिजाजों का हिस्सा बनती चली जा रही है। सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई से हम वो तवाज़ुन बहाल कर सकते हैं जो ख़ानदान के अफराद के हकूक़ और फ़राइज़ के दरमियान है। इस बात में उसवा हसना की रहनुमाई भी अहम है और अहादीस मुबारका का वसी ज़ख़ीरा भी जो अफराद के बाहमी रिश्तों में अदल और एहसान की तालीम देता है। इस बात का मेरी नज़र में तीसरा और आखिरी नुक्ता रियासती इंतज़ाम और नई अखलाकी अखबार की तरवीज है। मगरब में सनदी तरक्की हुई तो रियासतें मजबूत होती चली गईं और खुशहाली आई, मगर फ़र्द और समाज के दरमियान मौजूद ख़ानदान की दरमियानी कड़ी टूटती चली गई। इस नए निज़ाम में सरमाए की बढ़ोतरी के लिए इस दरमियानी कड़ी का टूटना भी बहुत अहम था। ख़ानदानी निज़ाम शराकत की बुनियाद पर ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ अदा करता था और सहूलतों के फुकदान को रिश्तों के खिलाफ के सबब अहम नहीं समझता था। लिहाजा मुस्तहकम ख़ानदानी निज़ाम के सबब ज़िंदगी सादा थी और फ़र्द से जुड़ा होने की वजह से सरमाए का मुतबादल हो जाया करता था। नए निज़ाम में हर फ़र्द मुक़तदर बना दिया गया है। उसको दौलत और आसाइश का रसिया बनाने के लिए मीडियाई ताकत का इस्तेमाल हो और यूं सार्फिन की तादाद बढ़ती चली गई। फिर इस फर्द को इस कदर मसरूफ़ कर दिया गया कि वो मशीन बनता चला गया। और तकलीफ दे बात यह है कि फर्द को उसकी आज़ादी का झांसा देकर एक मुनाफा बख्श प्रोडक्ट बनाकर रख दिया गया है और सबसे ज़्यादा जिसको मुनाफा बख्श बनाया गया है वो औरत है। तो फगी ये देखिए कि ये सब कुछ इल्म, हिकमत, तदब्बर और मुसावात के पर्दे में हो रहा है। इकबाल बहुत पहले समाज दुश्मन निज़ाम की इस अदा को जान गए थे। उनने कहा था, ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बर, ये हुकूमत, पीते हैं लहू, देते हैं तालीम, मुसावात। हमें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि सरमाए का सफीना जल्द डूब जाएगा। इस सारी सूरत हाल में समाजी सतह पर तबाही से बचने के लिए रियासत पर कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं। एक फायर वाल तामीर करना होगी कि फर्द को, समाज को और पूरे रूहानी निज़ाम को नए इक़्तिसादी निज़ाम की मुरतबा अखलाकियात की मुसलसल जलकार से कैसे महफूज रखा जा सके।
इकबाल ने एक ज़माने में जो एक मरकज़ महसूस का ख्वाब देखा था, तो इसलिए नहीं कि दुनिया के नक्शे पर महज एक और मुल्क का इजाफा हो जाए और मुल्कों जैसा एक और मुल्क, बल्कि वो इस मरकज़ महसूस को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में, की सीरत की रोशनी में हर सतह पर एक मिसाली मुआशरे की सूरत देख रहे थे। ये ख्वाब अभी शर्मिंदा ताबीर होना है। अगर हम इस ख्वाब से वाबस्ता रहते हैं और इसे इश्क रसूल के तकाज़ों में से एक समझते हैं, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ये ख्वाब ज़रूर शर्मिंदा ताबीर होगा, वरना हमें सोचना होगा कि इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा हो या इकबाल के ख्वाब से वाबस्तगी का, हम इससे अलग कहीं और भटक रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, सुभान अल्लाह। आप सब मोहम्मद हमीद शाहिद साहब की बहुत ही फिक्र अंगेज तहरीर समाअत फरमा रहे थे।